So in the last session, the last topic that we saw was Biot-Savart law. आपको magnetic field find करना था due to current, and we have taken an arbitrary shaped wire. So according to Biot-Savart law, the magnetic field due to a small length element is directly proportional to current through the element, directly proportional to length of the element, directly proportional to sine of angle between the line joining the center of the element to the point and the length element, क्योंकि एंगल लेंथ एलिमेंट और इस लाइन में था, then it is proportional to 1 upon r square. So overall magnetic induction मतलब magnetic field strength is directly proportional to IDL sin theta by r square. Then अगर आप proportionality की साइन हटाओगे तो mu 0 by 4 pi, mu 0 by 4 pi is constant of proportionality. This is what you have. इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था. वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था. तो यू हैव mu 0 by 4 pi ideal r sin theta by r cube. dl r sin theta is nothing but dl bar cross r bar. Now going ahead, इसका पहला एप्लीकेशन है magnetic field due to a long straight wire. So application of Biot-Savart law. Application number 1, magnetic field, magnetic induction due to a long straight wire. Infinitely long wire है ये, तो मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख नहीं रहा हूँ, but you need to know that this is infinitely long wire. So the idea here is कि आपके पास एक infinitely long wire है. You have an infinitely long wire, and then you have a point. एक point ले लिया P. Imagine a point P over here. इस P point पे आपको magnetic induction find करना है due to current through this wire. इस वायर में करंट है which is going from minus infinity to plus infinity, and this is origin O of the system, right? Now this point P, इस P point का distance मैं ले लेता हूँ R, and आपको find करना है what is the magnetic induction due to this current. तो आप क्या करेंगे इसके लिए, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले what you need to do is इस पूरे के पूरे वायर को you need to imagine in the form of small length elements, large number of small length elements. उसमें से एक लेंथ एलिमेंट हम ले लेंगे somewhere. Let's take it over here. तो ये एक लेंथ एलिमेंट आ गया. Good. So you have this length element over here. This is one length element. इस लेंथ एलिमेंट का लेंथ let us take dl. So dl is the length of this length element. ये लेंथ एलिमेंट का सेंटर है, और बायोट-सावर्ट लॉ में आप क्या करते आए हो कि आप सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट से जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन, एंड इस डिस्टेंस को हमने r बोला था, r बोला है. और अगर आपको याद है लेंथ एलिमेंट और इस लाइन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा. तो दिस इज थीटा. अगर ये थीटा है then what you can do is, मैं ऐसा करता हूँ, I just extend this line little bit. इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, right? तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा पाई माइनस थीटा. दिस इज पाई माइनस थीटा, राइट? तो बहुत बेसिक है. बेसिक सिर्फ इतना आपको बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है. P पॉइंट पे फील्ड निकालना है. P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया वायर को, उसको मान लिया ओरिजिन O. O से P का डिस्टेंस है R. देन क्योंकि हम एक साथ तो पूरे के पूरे वायर का फील्ड निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे वायर को इमेजिन करते हैं टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ dl. तो ये जो dl है इसके सेंटर से P पॉइंट तक आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, उसको स्मॉल r बोलते हो. दिस एंगल इज थीटा and this angle is pi minus theta, क्योंकि टोटल एंगल है 180 मतलब pi minus theta. एक काम और कर सकते हैं, let's call this as small l. Good. तो according to Biot-Savart law you should know that magnetic field due to this small length element is given by
अगर आपको याद होगा, अभी लिखा ही है यहाँ पे, तो यू शुड नो दिस. दिस इज व्हाट, दिस इज dB इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर. गुड. मैंने यहाँ पे क्यूब नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा. आई एम जस्ट राइटिंग स्केलर फॉर्म, और स्केलर फॉर्म में याद होना चाहिए म्यू 0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर फॉर्म. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट. हमको चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा इंटीग्रेशन कहां से, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. लेकिन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को कैसे लिखोगे? माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू प्लस इंफिनिटी. मतलब इन शॉर्ट व्हाट आर यू डूइंग? इन शॉर्ट आप पूरे के पूरे वायर को इमेजिन कर रहे हो टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट. ये लेंथ एलिमेंट कहां से स्टार्ट हुए? ये लेंथ एलिमेंट स्टार्ट हुए हैं माइनस इंफिनिटी से. कहां तक गए? जीरो तक. फिर जीरो से कहां पे गए? प्लस इंफिनिटी तक. तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. तो ये आपको याद होना चाहिए. मतलब टोटल फील्ड अगर आपको निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट टोटल फील्ड, तो यू विल हैव माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड देन जीरो टू इंफिनिटी. क्योंकि जितने भी लेंथ एलिमेंट हमने इमेजिन किए, ये जो करंट आई था वो हर एक लेंथ एलिमेंट से पास होगा. तो एज आई एम टेलिंग यू कि हमने पूरे के पूरे वायर को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में अज्यूम किया है. तो ऐसे लेंथ एलिमेंट्स हर जगह पे है. इट इज ऑल्सो ओवर हियर. तो जो करंट है आपके पास आई, वो इसमें से भी पास होगा, वो इसमें से भी पास होगा, वो यहां से भी पास होगा. मतलब हर एक लेंथ एलिमेंट अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. कहां पे? P पॉइंट पे. एंड ईच लेंथ एलिमेंट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड हाउ मच? म्यू 0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर. तो टोटल विल बी इंटीग्रेशन, राइट. वेल, ये दोनों सेम ही आते हैं भाई, यू शुड नो. क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल है ना. जितना वायर का लेंथ नीचे उतना ही वायर का लेंथ ऊपर. जितना नीचे के पार्ट में करंट है उतना ही ऊपर के पार्ट में करंट है. तो यू शुड नो माइनस इंफिनिटी टू जीरो dB इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी dB. मतलब लोअर पार्ट और अपर पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, राइट. तो यू विल गेट दिस एज B टोटल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to infinity dB. 0 to infinity dB, but dB क्या है? म्यू 0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर. एंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज DL. तो DL को छोड़ के बाकी सबको बाहर निकालो, राइट. एक्चुअली नॉट राइट, बट ठीक है. म्यू 0 बाय 4 पाई इसको बाहर रख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है. देन व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले बिफोर वी टेक आउट अदर थिंग्स आउटसाइड इंटीग्रेशन, 0 टू इंफिनिटी क्या बचा? आई तो कांस्टेंट है, आई कैन बी टेकन आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. DL sin थीटा बाय r स्क्वायर. बट इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, और अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है तो यू शुड बी नोइंग साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, बट साइन इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. मतलब r बाय स्मॉल r, but small r, because this is a right angle triangle, you should know that small r is nothing but under root of capital R square plus L square. तो this is ठीक है. एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही लिखते हैं फिलहाल. Then put it there. So you will have this as 2 mu 0 by 4 pi I integration 0 to infinity dl. This is capital R by small r और r square मतलब r cube. अब आप इस कैपिटल R को भी बाहर निकाल सकते हो क्योंकि कैपिटल R तो कांस्टेंट है. देन 0 टू इंफिनिटी dl स्मॉल r, अभी भी आपने लिखा स्मॉल r इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मतलब ये आएगा बाय 2, लेकिन उसका भी क्यूब, तो 3 बाय 2. गुड. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dl अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2 इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल. मैंने बताया था. डू यू नो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? नहीं, इट्स नॉट साइन इनवर्स.
इट्स स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन विथ क्या आएगा, व्हाट इज दिस, सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व होता है वो, मैंने आपको नोट्स में दिया है, चेक कर लो एक बार, यू शुड चेक। आर समथिंग समथिंग 1/r², ऐसा आता है वो, 1/r² था ना, यस, तो वो याद होना चाहिए, इट इज 1/r², 1/r² आता है ये। आफ्टर पुटिंग लिमिट्स, व्हाट यू आर सेइंग इज साइन इनवर्स समथिंग, ठीक है, लेकिन लिमिट्स डालने के बाद पूरा सॉल्व किया था हमने, पूरा सॉल्व करने के बाद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एंड दैट शुड बी करेक्ट एक्चुअली, तो ये आ जाएगा r², करेक्ट ही है, दैट्स नॉट एन इशू हियर। तो ये आ जाएगा आपके पास μ0/4π 2i/r, ये आ गया आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। गुड, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। एक्चुअली तो हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन बाकी है, ये तो हमने एक ही केस लिया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अभी हम कर्व्ड वायर भी लेने वाले हैं, हम सर्कुलर लूप भी लेंगे, लेकिन इमीडिएटली इसके बाद फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा, क्या देखा, we have seen that when you have a long straight wire, it will generate magnetic field in its surrounding region. So now the idea is, अगर मेरे पास दो very long straight parallel wires है, if I have, and if they're carrying current, I1 and I2, current is I1 and current is I2, राइट, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, तो होगा क्या, इमेजिन पहले वायर में जो करंट है, मैं सिर्फ लाइक के लिए करूंगा, अनलाइक के लिए सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन होगा अपोजिट, दैट्स इट। अब ऐसा है, व्हेन यू हैव करंट, इमेजिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, दिस डिस्टेंस इज a। तो पहले तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, you know the direction of magnetic field. So when you have current through long straight wire, you need to imagine that the wire is held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled. If thumb gives direction of current, then curled finger gives direction of magnetic field. तो look, ये जो पहला वाला वायर है, फर्स्ट वन, उसका अगर सोचोगे तो इट इज कर्ल्ड मतलब इट इज कमिंग आउट, ऊपर की तरफ से इट इज कमिंग आउट, लेकिन नीचे इट विल गो इनसाइड, मतलब एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड वायर, जहां पे सेकेंड वायर लोकेटेड है, वहां पे पहले वायर का जो करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कितना कर रहा है, ये आपने देखा, μ0/4π 2i/a, क्योंकि डिस्टेंस इज नाउ a, दिस इज गोइंग इनसाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और सेकेंड वायर हैपेंस टू बी अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द फील्ड ऑफ फर्स्ट, मतलब सेकेंड वायर के लिए पहले का फील्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंड कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, पहले का, और हमको ऑलरेडी पता है कि फोर्स ऑन अ वायर carrying current is BIL sin of theta. Force on 2, क्योंकि force acting on second conductor due to 1, लेकिन पहले ने क्या जनरेट किया, फील्ड, तो फील्ड किसका, पहले का, ये किसका, सेकेंड का, और ये किसका, सेकेंड का। और एंगल आप हमेशा देखते हो लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रहा है और लेंथ एलिमेंट कैसा है, परपेंडिकुलर, मतलब साइन इज 9, साइन थीटा इज साइन 90, दैट इज 1। तो फोर्स एक्टिंग
force acting on second wire due to first is B1. But what is B1? Mu 0 by 4 pi to I1 by A, because distance is A. I2 और L दोनों का सेम है, तो इसलिए L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L. तो दिस इज व्हाट यू गेट. तो ये मिल गया आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 म्यू 0 बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय A. इफ यू वर्क आउट डायरेक्शंस, जो मैं नहीं बताने वाला, आपको खुद को देखना है. अगर आप डायरेक्शंस देख लोगे अच्छे से समझ में आएगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज टुवर्ड्स 1. And similarly, current in I2, ये जो I2 में करंट है ना, इट विल जनरेट फील्ड एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, और वो आएगा बाहर की तरफ. मतलब हियर यू हैव दिस एज फील्ड. किसका फील्ड है? सेकंड का. और यहां पे किसका था? फर्स्ट का. तो सिमिलरली पहला कंडक्टर ये सेकंड कंडक्टर से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, राइट? So second conductor is placed inside the field generated by first. Similarly, first conductor is placed in the field generated by second. तो उस पर भी फोर्स लगेगा. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई. आप देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर वही पैटर्न फॉलो करना है, इट इज नथिंग बट सेम. किसका फील्ड? सेकंड का. B2. किसमें करंट? फर्स्ट में. लेंथ किसका? फर्स्ट का. साइन 90 अगेन. B2 कितना आएगा? म्यू 0 बाय 4 पाई टू I2 बाय A. I1 और L तो दोनों का सेम है, तो मिल गया आपको. सेम फोर्स है दोनों पे. तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय A इनटू L. इसको बोल देंगे F. ये आ गया टोटल फोर्स. टोटल फोर्स किस पे? कंडक्टर 1 पे या फिर कंडक्टर 2 पे. हो सकता है, क्योंकि बोला ही ना इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, हमको पता करना है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स. तो क्या करोगे? टोटल फोर्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे. इफ यू हैव अ वायर व्हिच इज 10 मीटर लॉन्ग, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ लेट अस से 30 न्यूटन, करेक्ट? तो पर मीटर में कितना फोर्स है? 3, क्योंकि 30 बाय 10. तो यहाँ पे भी कर सकते हो ना, सिर्फ L को शिफ्ट कर दो. What you can do is this. इसको शिफ्ट कर दो. ओके, दिस इज स्मॉल f. Oh yeah, force per unit length. Force per unit length is mu 0 by 4 pi to I1 I2 by A. If you look at the directions, it is like this. Force acting on 1 due to 2. तो पहला वायर दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा वायर पहले की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. मतलब इट आफ्टर अ व्हाइल, करंट पास करने के थोड़ी देर के बाद, यू विल सी दिस वायर समथिंग लाइक दैट. दे आर बेसिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. तो जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यहाँ पे लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन लेट्स मूव टुवर्ड्स second application of Biot-Savart law, which is nothing but magnetic field produced by a current in a circular arc. So magnetic field produced by a current, application number 2 है ये. Magnetic field produced by a current in a circular arc. मतलब what you have is a circular arc. आपके पास एक arc है, and this arc carries some current. तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे. yes. तो this arc carries current. इसमें से करंट पास होगा I. एंड हमारे पास एक पॉइंट है, सम पॉइंट P ओवर हियर. यहां पे हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. तो बायोट-सावर्ट लॉ ही यूज करना है आपको.
फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, ये बायोट-सावर्ट लॉ का कंडीशन क्या था कि आपके पास वायर का कोई भी शेप हो, वी डोंट केयर, उस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में स्प्लिट करो, दैट इज द आइडिया। तो स्प्लिट करो सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको स्प्लिट करोगे। ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब ये आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये जीरो एंगल यहां तक, ये टोटल एंगल है थीटा, राइट। गुड। एक कंफ्यूजन नॉर्मली होता है, हमने थीटा हमने पहले कहां यूज किया पता है आपको, याद है? एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, राइट। लेकिन यहाँ पे हम वो थीटा की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ये टोटल एंगल की बात हो रही है। आर्क जहां से शुरू हुआ जीरो एंगल, जहां खत्म हुआ थीटा एंगल। हो सकता है आपके पास कंप्लीट आर्क हो तो 360, राइट, वो बाद में देखेंगे हम लोग, वो स्पेशल केस में आ जाएगा, राइट। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अगर आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो पहले एक एलिमेंट का फील्ड फाइंड करना, कभी भी सिंगल एलिमेंट का। तो सिंगल एलिमेंट यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, ये पहला एलिमेंट खत्म हो गया। तो पहले एलिमेंट ने एंगल जितना बनाया उसको बोलेंगे डी थीटा, स्मॉल एंगल। तो डी थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल। The magnetic field due to this small length element at P is nothing but dB equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay, so this is what you need to know. ये आपको पता होना चाहिए। Good, clear? देन क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। ये एक एलिमेंट का है और हमको चाहिए टोटल, तो टोटल के लिए क्या करते हैं, यस, इंटीग्रेट करते हैं। तो टोटल फील्ड बी टोटल इज इंटीग्रेशन। अब एक काम करो, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं। तो कहां से स्टार्ट हुआ, ए से बी तक, और जितने भी लेंथ एलिमेंट्स थे हर एक लेंथ एलिमेंट ने फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, डीबी 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 डीबी, सबको आप ऐड करते जाओगे, मतलब इंटीग्रेट करोगे, राइट। तो अब तो यू विल हैव डीबी की जगह पे क्या है, म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से, कहां खत्म हुआ, थीटा पे। जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, ये जो थीटा है ना, ये थीटा, एज आई टोल्ड यू, ये थीटा था एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट। अब सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूं, मैं उसको बोल दूंगा डेल्टा। फाई बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट, डजंट मैटर, इट इज जस्ट मैटर ऑफ नोटेशन। एंड एज यू कैन सी, वो जो लाइन है, वो लाइन कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट से कहां तक जाता है, पॉइंट तक। और लेंथ एलिमेंट मतलब ये है लेंथ एलिमेंट, करेक्ट, दिस इज अ लेंथ एलिमेंट। और एंगल कितना बना, 90 बना, मतलब डेल्टा कितना है, 90 है। वेरी गुड, तो समझ में आ गया डेल्टा 90 है। तो डेल्टा अगर 90 है तो जब आप टोटल फील्ड निकालोगे, तो टोटल फील्ड जब आपको फाइंड करना होगा, तो इन दैट केस टोटल फील्ड फाइंड करने के लिए यू विल बी पुटिंग डेल्टा इक्वल टू 90, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। गुड। देन ये ज्यादा इजी इसके लिए है क्योंकि बहुत कुछ कांस्टेंट है, म्यू 0 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। इस केस में, पिछले केस में आर कांस्टेंट नहीं था, क्यों नहीं था, रीजन था क्योंकि लेंथ एलिमेंट आप जहां लोगे उस पर डिपेंड करेगा आर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेंथ एलिमेंट इसकी बात कर रहा हूं तो इसके लिए आर अलग है और इसके लिए अलग था, राइट। लेकिन
कर जब आपके पास सर्कुलर आर्क है ना, तो लेंथ एलिमेंट आप कहीं पे भी लो सेम आर आएगा, इसलिए आर इज कांस्टेंट. तो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग. आर बाहर आ गया, वेरी गुड. 0 to theta dl. But if you remember school level mathematics, arc length equal to arc length of arc equal to r theta. It's not piece of pizza. ये r है, ये arc length है, ये theta है. Arc length s is radius into theta. मैंने सिर्फ यहां पे इसको बोला है dl, इसको बोला है d थीटा. तो क्या आएगा फिर, dl इक्वल टू r d थीटा. सब्स्टिट्यूट करो तो म्यू 0 बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर 0 टू थीटा r d थीटा. r वैसे भी कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा. म्यू 0 बाय 4 पाई i बाय r d थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा. ये आ गया आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला. डन. गुड. नाउ अगर आपको सर्कुलर लूप का फील्ड निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, अगर आपको ये फाइंड करना है, तो इन दिस केस व्हाट यू विल हैव इज नॉट लाइक दिस बट सर्कुलर लूप. गुड. तो इट्स अ जोक बेसिकली. क्यों? क्योंकि वापस वही स्टोरी. व्हाट स्टोरी? डिवाइड द लूप इनटू स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स. तो लेंथ एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर लो. अब जितने भी लेंथ एलिमेंट्स होंगे, डजंट मैटर हाउ मेनी यू हैव, बट इन एनी केस एंगल, पहला लेंथ एलिमेंट जहां भी लोगे, जहां आपकी मर्जी वहां लो, पहला लेंथ एलिमेंट को यहां ले लो. 0 एंगल हो गया, ये हो गया पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, मतलब 0 से कितना 2 पाई. वेरी गुड. तो ये फॉर्मूला उठाना और यहां पे यू विल हैव बी टोटल इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई i बाय r. इसका इंडिकेशन आएगा थीटा, लेकिन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई. दैट्स इट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो व्हाट यू विल गेट इज, what you will get is this. इसको यहां से रिमूव कर दोगे and you will have 2 pi, pi 1 and 2, तो 1 and 2 तो आ गया म्यू 0 i by 2r. राइट. तो इजी है, जस्ट एंगल एंगल, दैट्स इट. डन. And next in the list, I think it's axial field produced by current in circular loop. Axial field produced by axial magnetic field produced by current in circular loop. तो आपके पास एक सर्कुलर लूप है. गुड. दिस इज सर्कुलर लूप. एक्सियल मतलब ऑन द एक्सिस. तो लेट्स शो एक्सिस फर्स्ट. सो दिस इज एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप. क्योंकि सेंटर पे तो फाइंड कर लिया ना, ये जो था ना ये सेंटर पे था. मैंने लिखा नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए ये सेंटर पे है. इवन दो आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप है. ओके, ये है ऑन द एक्सिस. अब एक पॉइंट है एक्सिस पे, लेट्स टेक दैट पॉइंट टू बी P.
You want to find out what is magnetic field due to current in this loop at point P. और मैं नोटेशंस जो मैंने नोट्स में दिए हैं वही यूज करने वाला हूँ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इसको शायद ए बोला था. रेडियस ऑफ द लूप को मैंने लिया है ए, और क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस लिया था, आपके बुक में वही जेड एक्सिस पे दिखाते हैं एक्सिस, तो मैंने क्योंकि एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस दिखाया है तो ये डिस्टेंस मैंने एक्स लिया होगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स व्हाट आई हैव डन, राइट. नोटेशन का चिंता मत किया करो, फिजिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट. नोटेशन चलता रहता है हियर एंड देयर, राइट. तो आपके बुक में जेड बोला है क्योंकि आपके बुक में क्या किया है, टेक्स्ट बुक में, आई मीन ऐसा. हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिजिक्स थोड़ी चेंज होने वाला है, तो फिजिक्स तो फिजिक्स रहेगा. गुड. अब the idea was to find out total field at point P due to current I. यहाँ पे करंट है जो लूप में सर्कुलेट हो रहा है, इसमें से फील्ड, इस करंट का फील्ड निकालना है एक्सिस पे. तो एज यू नो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरे लूप को डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स. उसमें से एक लेंथ एलिमेंट मैंने यहां ले लिया, बहुत स्मॉल है, दिखेगा नहीं पर समझ लेना, यहाँ दिस वन, राइट. ओके, एट सम पॉइंट ए पॉइंट पे एलिमेंट ले लिया. एंड एज यू नो, एज यू रिमेंबर, क्या करते हैं हम लोग, हम इसके बाद ऐसा करते हैं, जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वहां से एलिमेंट के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं आर, स्मॉल आर, राइट. स्मॉल आर लिया होगा, एनीवेज. गुड. थोड़ा जूम करके देखो, है ना, थोड़ा जूम करके देखते हैं. इफ यू जूम इट यू विल सी दैट दिस इज द लेंथ एलिमेंट dl. ये लेंथ एलिमेंट dl यहाँ पे है, एंड वो जो पॉइंट था जहां पे आपको फील्ड फाइंड करना है ये ऐसा है, राइट. तो एंगल कितना बना, 90, मतलब थीटा कितना है 90, तो साइन थीटा कितना आएगा, मतलब P पॉइंट पे, इस लेंथ एलिमेंट पे, A पॉइंट पे आपने जो लेंथ एलिमेंट लिया है dl, उसकी वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा dB इक्वल टू μ0 by 4 pi I dl स्क्वायर. साइन थीटा था लेकिन 1 बन गया, साइन 90 is 1. गुड. यहां तक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. dB, क्यों dB, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात चल रही तो dB आएगा. और गोइंग बैक टू दिस इक्वेशन, दिस वन, dB is magnetic field vector quantity and it is directed perpendicular to both dl and r, क्योंकि वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है. आपको पता होना चाहिए, अगर मैं लिखता हूं c बार इक्वल टू a बार क्रॉस b बार, अगर हम ऐसा लिखते हैं c बार इक्वल टू a बार क्रॉस b बार, तो व्हाट इट मींस इज c बार का डायरेक्शन जो है वो a बार और b बार को परपेंडिकुलर है. तो यू शुड नो, if I say this is a bar, this is b bar, then this is c bar which is a bar cross b bar. तो सिमिलरली जब आपने db बार का इक्वेशन लिखा था, वेक्टर इक्वेशन, तो आपने लिखा था dl बार क्रॉस r बार, एंड दैट इज व्हाई मैंने जूम करके दिखाया था. मैं वापस दिखा देता हूं. ऐसा था dl, उसके बाद आपके पास था r, दिस इज r बार, दिस इज dl बार. इन दोनों को परपेंडिकुलर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये आएगा समथिंग लाइक दिस. इन दोनों को परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा आपको, बिकॉज इट इज, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ 3 डायमेंशन ऑन 2 डायमेंशनल, लेकिन समझना पड़ेगा. दिस इज व्हाट dB बार. अब ऐसा है, हम फील्ड फाइंड कहां कर रहे थे, P पॉइंट पे. यहां कर रहे हैं क्या, नहीं ना, तो A यहां पे दिखाना चाहिए, मतलब यहां से इसको एक्चुअली ऐसा दिखाना चाहिए. सो यू शुड शो इट लाइक दिस. तो ये आ गया आपके पास
dv बार। ओके राइट, तो डायरेक्शन समझेगा तो बाकी सब समझेगा, नहीं तो गए। सिंपल थिंग। तो आप ऐसा करो, ये डमी लाइन है, जस्ट अ लाइन टू शो सम एंगल्स। नाउ let me say this angle is alpha. If this is alpha, this is 90 minus alpha, और ये एक्चुअली दिख नहीं रहा है लेकिन ये है, क्योंकि मैंने अभी बताया 90 आता है, ये 90 आता है, अभी बताया ना मैंने आपको 90 आता है। गुड, ये 90 आता है तो ये कितना होगा अल्फा, ये अगेन अल्फा आ गया, राइट, दिस इज अल्फा अगेन। क्लियर यहां तक? तो ये जो डीबी है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा, एक जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा। तो दिस हियर is dB sin alpha, this is dB cos of alpha, राइट। अगर वहां पे आपके पास एक लेंथ एलिमेंट ऊपर हो सकता है तो एक एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे भी हो सकता है, बी पॉइंट पे होगा। हमने तो डिवाइड किया ना, हमने इमेजिन किया है। तो अब ऐसा है, जैसे यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ द एलिमेंट से उस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे भी कर लोगे, राइट। तो जैसे ऊपर एंगल अल्फा बना है तो नीचे भी एंगल अल्फा ही बनेगा। जैसे ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड dB इट इज मेकिंग सम एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, तो नीचे यहां पे भी जो बनेगा dB, मतलब बी आर्क के बी पॉइंट पे जो लेंथ एलिमेंट लिया है dB, इसमें से जब करंट पास होगा तो वो करंट P पॉइंट पे फील्ड जनरेट करेगा dB, राइट। सो बस सेम लॉजिक, ये क्या है अल्फा, तो दिस इज अल्फा। अब ये अल्फा है तो इसके कंपोनेंट्स अगेन, यहां पे एक कंपोनेंट जाएगा और यहां पे एक कंपोनेंट आएगा, यह जाएगा dB cos अल्फा, यह जाएगा dB sin अल्फा। तो dB cos अल्फा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट, whereas horizontal components will add up. गुड, तो आपको मिलेगा dB sin अल्फा प्लस dB sin अल्फा मतलब 2 टाइम्स ऑफ dB sin अल्फा। बट वेट अ मिनट, ये तो सिर्फ दो लेंथ एलिमेंट्स का फील्ड है, हमें चाहिए टोटल फील्ड। टोटल फील्ड के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेशन किस पे, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। रिमेंबर यहाँ पे 2 पाई नहीं लेना, क्यों, इमेजिन क्या होगा 2 पाई लिया, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, हमने यहां पे पहला एलिमेंट लिया था और इसके लिए एक अपोजिट साइड बी पे भी लेके रखा है, राइट, गुड। देन जैसे ही मैं यहां पे आया, इस पॉइंट पे एक एलिमेंट है तो उसके अपोजिट साइड पे भी एक एलिमेंट है, यहां पे आया एक एलिमेंट है तो उसके अपोजिट साइड पे भी एक एलिमेंट है, यहां पे लिया एक एलिमेंट तो उसके अपोजिट पे भी एक एलिमेंट, यहां पे लिया यहां तो फिर उसके अपोजिट पे भी एक एलिमेंट। और आपको दो दो एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर dB cos अल्फा कैंसिल नहीं होने वाला, तो डायमेट्रिकली अपोजिट लेना ही पड़ेगा। और दो दो एलिमेंट लेने के बाद ही 2 टाइम्स ऑफ dB sin अल्फा आ रहा है, एक का नहीं, एक का लोगे तो फिर कैंसिल होगा ही नहीं हो। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट हियर पाई। अगर यहां 2 डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहां पे नीचे 2 मत लिखना फिर। तो इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू राइट इट हियर और इफ यू वांट टू राइट इट देयर। दोनों जगह पे 2 डाल दिया तो डबल डबल काउंट कर रहे हो, तो यू कैन नॉट काउंट इट डबल। देन ऑफ कोर्स 2 कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज dV, 4 पाई, आइडियल साइन तो गया, लिखा भी है ना यहाँ पे बाय r स्क्वायर और साइन अल्फा, साइन अल्फा
and as you can see sin alpha opposite side upon hypotenuse मतलब a by r मतलब a by r। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे यहाँ पे in the next step you will write down a by r और उसके अगले स्टेप में लिखोगे a by r क्यूब a by r गया और यहाँ पे 2 भी गया और यहाँ आ गया क्यूब। फिर जो जो कांस्टेंट है बाहर, क्या क्या कांस्टेंट है, 2 म्यू 0 4 पाई आई ए भी कांस्टेंट है राइट। आर को मत करना कुछ, आर फ्रॉम डायग्राम इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 right? Wrong. It is 1/2 here. There it is 3/2. When you put it there, then it is r cube ना, तो 3/2 होगा। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई तक, ऊपर क्या लिखेंगे dl और यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन सा, लेंथ dl, l a कांस्टेंट है x कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है वो। 2 म्यू 0 बाय 4 पाई आई ए अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन dl फ्रॉम 0 टू पाई। करेक्ट, 0 से पाई तक आप लेंथ एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 पाई आर की पाई आर, आधा ही लूप ले रहे हो ना। अरे एक वायर को मैंने लूप बनाया तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर। एक वायर था जिसका लेंथ l था, उसको लूप कर दिया तो 2 पाई आर। करेक्ट, ये आधा ही लूप है तो 0 टू पाई है, तो क्या आएगा हाफ सर्कमफेरेंस कितना होता है पाई आर, लेकिन हमने आर को क्या बोला है ए बोला है, तो क्या आएगा वो पाई, दिस इज पाई। तो यह आ जाएगा 2 म्यू 0 बाय 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 पाई इज इक्वल टू 2 1 and 2। ठीक है, गुड। ठीक है, आप कैंसिल करो मत करो, आई डोंट माइंड। इफ यू डोंट वांट टू कैंसिल इट आउट, परफेक्टली फाइन। पाई पाई रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तो इफ यू वांट यू कैन कीप म्यू 0 बाय 4 यस, 2 यस, पाई यस, आई यस, ए स्क्वायर यस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। सिर्फ इतना है कि वेरीफाई कर लेना सही है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करोगे, देखो ऐसा है, हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं एक्सिस पे, इस लाइन पे ना। अगर मैं सेंटर पे आता हूं तो सेंटर भी तो एक्चुअल पॉइंट ही होता है ना, क्योंकि एक्सिस तो वहीं से पास होगा, सिर्फ x इक्वल टू 0 होगा। चेक कर लो, अगर x इक्वल टू 0 मैंने डाल दिया तो इस फॉर्मूला में ये हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपका रेज टू 3/2। 2 भी गया, 2 और 2 भी गया, क्या बचा नीचे ए क्यूब, ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर, तो ए क्यूब और ये भी गया और गया। ये यहां से पाई और यहां से पाई भी गया और गया। ये म्यू 0 आई बाय 2 है, म्यू 0 आई बाय 2 है, क्योंकि यहाँ पे से ए को आर बोला था हमने, मतलब सही है फॉर्मूला, नथिंग रॉन्ग। क्योंकि अभी इसमें क्या किया था हमने, वही तो किया था, इसमें क्या किया था, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे ही तो फाइंड किया कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ आर इज आर रेडियस, वहां पे रेडियस को क्या बोला है ए। हाँ, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या आया म्यू 0 आई बाय 2 आर, और हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया
सिर्फ चेक करने के लिए कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हमने बोला कि ये कैसे बताएगा, एक्सियल पॉइंट ओ, लेकिन सेंटर ऑफ सर्कल आल्सो ऑन द एक्सिस, तो एक पॉइंट ले लिया सेंटर पे, बोल दिया x इक्वल टू 0, ठीक है x इक्वल टू 0 डाला तो यू हैव म्यू 0 I बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और ये सही था फॉर्मूला, राइट। सो दिस इज हाउ यू क्रॉस वेरीफाई, तो सही है, ऑल गुड। तो एंड ऑफ दिस टॉपिक, देन लेट नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर्स लॉ। ऐसा है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ बोलते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ हमारे काम में आता है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस, जैसे कि एक स्फीयर के ऊपर चार्ज है, एक वायर के ऊपर चार्ज है, एक थिन शीट के ऊपर चार्ज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम्पियर्स लॉ हमारे काम में आता है टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ। अभी अभी हमने आज का शुरुआती वहां से किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या फॉर्मूला बना, म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय r, राइट। और ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का है, अगर सर्कुलर लूप का होगा ना तो सिर्फ पाई नहीं आएगा, राइट, पाई नहीं आएगा, 1s और 2s, ठीक है, 2I बाय सॉरी म्यू 0 I बाय 2r, वो तो किया ना हमने। लेकिन ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फाइंड कर रहे थे, क्या फाइंड कर रहे थे, फील्ड, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे एट डिस्टेंस r। कितना मेहनत करना पड़ा हमको, हमने बोला ओ नीचे लेंथ एलिमेंट लो, ऊपर लेंथ एलिमेंट लो, माइनस इंफिनिटी से 0 तक इंटीग्रेट करो, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट करो, फिर दोनों सेम आते हैं, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करो, एंड देन यू हैव दिस। तो एम्पियर्स लॉ लाइक गॉस लॉ मेक्स योर लाइफ इजी। वो क्या करता है, एक फॉर्मूला बता देता है, वो आपको बोलता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, हमको तो पता है कि इसके सराउंडिंग रीजन में फील्ड है, और अगर आपको एक किसी पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस R होगा, इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना, जैसे गॉस लॉ में आपने चार्ज को एनक्लोज किया था, किसमें एनक्लोज किया था, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस में एनक्लोज किया था, उसका शेप क्या था, जो कंडक्टर का शेप था वो शेप था, कंडक्टर स्फीयर, तो गॉसियन सरफेस स्फीयर। कंडक्टर अगर वायर है तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है। वैसे ही आपको बोलता है आप यहाँ पे करंट को एनक्लोज करो, मतलब ये जो करंट फ्लो रहा है इसको क्लोज करो, तो ये आ गया इमेजिनरी, इमेजिनरी सरफेस नहीं है, ये लूप है, लूप, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप, एम्पेरियन लूप। जैसे गॉसियन सरफेस वैसे एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप, गुड, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, फिर एप्लीकेशन की तरफ जाना है हमको। स्टेटमेंट जैसे वहां लिखा था, क्या लिखा था वहां पे, याद है, द टोटल फ्लक्स, total flux is total flux through imaginary Gaussian surface is equal to charge enclosed by epsilon 0। यहाँ पे फ्लक्स की बात नहीं हो सकती क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये लाइन इंटीग्रल है, तो यहाँ बोलोगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ, कंपेयर करो, वहां पे क्या था, ई बार डॉट डी एल बार इक्वल टू चार्ज एंक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, वहां पे था इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर लाइन, लाइन लाइन है ना, लूप इज वन डायमेंशन, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, मतलब बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ permeability of the free space and current enclosed in the loop। सही है, वहां कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आता है, यहाँ कांस्टेंट न्यूमरेटर में आता है, वहां चार्ज एंक्लोज क्योंकि चार्जेस एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे करंट क्योंकि यहाँ पे स्टेडी करंट है, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स, राइट। तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम, गुड। अब पहला एप्लीकेशन यही है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, तो पहला एप्लीकेशन
magnetic field of long straight wire, magnetic field of long straight wire, मतलब एक्चुअली यही डायग्राम, दिस इज व्हाट यू विल नीड। राइट, क्या करेंगे अब? वी नो दैट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप b bar dot dl bar इक्वल टू म्यू जीरो करंट एनक्लोज, मैं मान लेता हूं करंट एनक्लोज इज I, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन क्लोज लूप b bar dot dl bar इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज लूप b dl cos of थीटा, वेयर थीटा जैसे वहां पे e bar dot dl bar थीटा लिखा था ना आपने, e bar dot ds bar लिखा था। क्या किया था आपने? एक सरफेस पे छोटा सा लेंथ सॉरी एरिया एलिमेंट ले लिया था ds, फिर एरिया एलिमेंट बाउंसर, तो लेट्स नॉट मेक इट बाउंसर, लेट्स मेक इट रिलेवेंट हियर। हे ये आया याद? आया? ये एरिया एलिमेंट लिया था, फिर ये एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन पता नहीं तो इसी को नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बोल दिया कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, और आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का डायरेक्शन था सेम, एंगल था 0, तो एंगल 0 था तो कॉस 0 हो गया था 1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट में डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे भी लूप का जो एलिमेंट है जिसको आप लेंथ एलिमेंट बोलते हो, लेंथ एलिमेंट कैसा लोगे? लेंथ एलिमेंट ऐसा लेंगे कि नहीं? राइट, अब ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ा देता हूं, ये आएगा कि नहीं लेंथ एलिमेंट? यस, गुड। तो लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है आपको। कंसिडर, इमेजिन long straight wire in your right hand with thumb outstretched, fingers curled fingers give you direction of field look। तो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन कैसा था? ऐसा ही तो था, और फील्ड का डायरेक्शन कैसा था? ऐसा ही तो है। तो ये है बी का डायरेक्शन, ये है डी एल का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम हो गया। यस, तो थीटा कितना? 0, तो कॉस 0 कितना? 1। तो इंटीग्रेशन b bar dot dl bar will be integration close loop b dl, correct? then b तो कांस्टेंट है फॉर द सेम रीजन, जैसे गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है फॉर द सेम रीजन। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट आप यहां लो या एलिमेंट आप यहां पे ले लो, इज द सेम, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, तो फील्ड का वैल्यू तो सेम आएगा, मतलब बाहर आ गया। राइट, अब मुझे बताओ ऐसे कितने एलिमेंट लोगे पूरे सर्कल पे लोगे, पूरे लूप पे लोगे? क्योंकि पूरे लूप को तो डिवाइड किया था ना, तो सारे एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर। इसको मैं काम करता हूं, मैं इसको कैपिटल आर बोलता हूं, करेक्ट? तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब म्यू जीरो आई एंक्लोज्ड, इस लूप में कितना करंट है? ओनली आई, एक ही वायर है, दूसरा होता तो I1 प्लस I2, एक ही वायर तो I। अब ये इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इंटीग्रेशन b bar dot dl bar is b into 2 pi r from 1, 2 and 3, और ये आपके पास आ गया म्यू जीरो आई, तो b इक्वल टू म्यू जीरो बाय 2 पाई आई बाय आर, तो b इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, म्यू जीरो बाय 4 पाई 2 आई बाय आर।
वही फॉर्मूला सिर्फ एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया एंड देन यू गेट द सेम आंसर इन वेरी लेस नंबर ऑफ स्टेप्स. कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ एम्पियर्स लॉ. अब इसका सेकंड एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या किया था हमने, सोलेनॉइड लिया था, फिर हमने फाइंड किया था व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. टाइटल थोड़ा बहुत यहाँ वहां होगा, बुक में कुछ और लिखा होगा, हो सकता है बात एक ही है. क्या लिखा है बुक में, आई विल चेक. तो बुक में क्या नाम दिया है इसको दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड. ठीक है, इट्स द सेम थिंग. तो आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड. टोरॉइड का केस मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं, क्योंकि कुछ नहीं है टोरॉइड का केस, वो खुद को करना चाहिए तो खुद ही करना है. बट ये दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी शुड बी डूइंग. आ गया सोलेनॉइड. सोलेनॉइड मतलब एक कोर होता है, उसके ऊपर होती है वाइंडिंग्स. So you have windings on this, something like that. ऐसे वाइंडिंग्स है इसके ऊपर, थोड़े क्लोज वाइंडिंग्स दिखाने पड़ेंगे, little close. Just a minute. Okay. ऐसा है, राइट? अच्छा दिखता है ना, गुड. अच्छा दिखेगा तो पढ़ने का भी इच्छा होगा नहीं. तो एनीवेज, पुअर जोक्स अपार्ट, सो यू हैव करंट आई. क्या करें, दिन भर फिजिक्स पढ़ा के थोड़ा तो पुअर जोक्स मारने पड़ते हैं. यू हैव करंट विच इज बेसिकली गोइंग थ्रू सोलेनॉइड. सो ऑफ कोर्स वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड. ओके, तो जैसे गॉस लॉ था, चार्ज को एनक्लोज करो, यहाँ पे करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा, राइट? अब करंट को तो पूरे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को तो एनक्लोज कर नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग क्या कर भी सकते हो, इट्स अप टू यू. बुक टू बुक अप्रोच चेंज होता है. लेट मी सी व्हिच अप्रोच आई हैव यूज्ड. आई थिंक आई हैव यूज्ड द अप्रोच ऑफ कंप्लीटली एनक्लोजिंग द करंट. ठीक है, लेट्स कंप्लीटली एनक्लोज द करंट. तो इफ आई एनक्लोज द करंट कंप्लीटली, मतलब मैं ऐसे ले लूंगा सीधा लूप. तो एक काम कर रहा हूं, मैं एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूं. क्यों? क्योंकि you have to enclose करंट. और मैंने जानबूझ के लूप का एक साइड थोड़ा दूर ही रखा है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे. दिस इज व्हाट यू हैव. अब इसका जो एक्सिस है, सोलेनॉइड का एक्सिस जो है, सो लेट्स टेक द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना था, एट द एक्सिस. तो लूप का एक साइड वेरी नियर टू द एक्सिस, एक साइड फार अवे फ्रॉम द एक्सिस. ओके, देन लेट अस गिव सम नेम टू दिस लूप. A, B, C and D. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए, थोड़ा नाम को चेंज करूंगा बिकॉज B will stand for magnetic field. तो P, Q, R and S. तो जैसे आप राइट हैंड रूल यूज कर रहे थे, if the thumb is pointing the direction of current, then curled fingers give direction of field. उल्टा भी ट्रू है. If the curled fingers give you direction of current, then thumb gives you direction of magnetic field. So in this case, magnetic field का direction है along the axis. So in this case, the field is directed along the axis. But what you have is this. This is the direction of magnetic field, right? ये पहला first thing is that. अब
ऑफ कोर्स एम्पियर्स लॉ आपको याद है, दिस इज एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ओवर द लूप b bar dot dl bar is mu 0 I enclosed. नाउ ये जो आप इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप सर्कल लिखते हो ना, इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल मतलब लूप क्लोज्ड है। अब इस केस में जो लूप है वो रेक्टेंगुलर है, तो इस केस में जो आप लिखोगे इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार, ये 4 पार्ट से आएगा। ये आएगा b बार डॉट dl बार प्लस b बार डॉट dl बार प्लस b बार डॉट dl बार प्लस b बार डॉट dl बार। कौन से 4 पार्ट? एक p से q, एक q से r, एक r से s, एक s से वापस से p। सिर्फ आप इसके ऊपर सर्कल मत दिखाना, क्योंकि जब p से q बोलो तो लाइन हो गया, सर्कल कहां से हुआ? लूप हुआ क्या? वो क्लोज नहीं, वो ओपन है, दैट इज वाई। अब looking at the angles, first is integration। एक काम करना, पहला हम देख रहे थे क्यू आर का, b बार डॉट dl बार 0, क्यों 0? b का डायरेक्शन क्या है, राइट? और p से q का डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री, राइट? और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा। व्हाट इज cos 90? 0 गया, तो यहां पे एंगल 0 है, इसके लिए गया, राइट? सिमिलरली S to P is the same case, angle is 270 और cos of 270 is again 0। अब ये जो R to S है ये भी 0 है, लेकिन इसका रीजन कुछ और है। इसका रीजन ऐसा है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज देखते हो, क्योंकि यू सी सोलेनॉइड वाइंडिंग में से करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट जैसा होता है, राइट? मैंने बताया था, आप वाइंडिंग को एक साइड से देख रहे हो, करंट आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल। उसी वाइंडिंग को आप दूसरे साइड से देखते हो, आपको वही करंट दिखता है क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ। If you remember 11th standard, magnetic field lines due to magnetic dipole, they are widely separated at far away points। मतलब होता कैसा है बेसिकली बता देता हूँ। होता ऐसा है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस जो होते हैं ना, नियर टू द बार मैग्नेट, ये डाइपोल है, बार मैग्नेट नहीं सोलेनॉइड है, लेकिन हियर दे विल बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन जैसे दूर जाओगे ना तो बहुत कम लाइंस दिखते हैं, वेरी वेरी फ्यू, करेक्ट? तो ऑलमोस्ट जीरो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब है ही नहीं वहां पे फील्ड, क्योंकि बहुत दूर है। तो बहुत दूर है, इस रीजन से यू हैव दिस एज 0, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड एट फार अवे डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 0, तो 0। तो आखिरी में बचा कौन? लूप पे इंटीग्रेशन किया था b बार डॉट dl बार, 4 पार्ट से 3 तो गए, बचाए कि p से q b बार डॉट dl बार। इस केस में b dl cos थीटा, हियर थीटा इज 0। क्यों 0? b बार का डायरेक्शन मैंने बताया कि नहीं? क्या बताया b बार का डायरेक्शन? दिस इज डायरेक्शन ऑफ b बार। अब p से q का डायरेक्शन क्या है? वही है, तो एंगल कितना? 0 0 0। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन b dl cos 0 is 1। तो b इंटीग्रेशन dl मतलब p से लेके q तक, p से लेके q तक मैं लेंथ को मान लेता हूं l। हाँ, तो l कैपिटल L ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू कॉल इट एज कैपिटल L, दैट्स ओके, डजंट मैटर। दिस इज कैपिटल L। तो यह आ जाएगा आपके पास bl। Now, according to Bart-Savart law, Ampere's law, v bar dot dl bar is equal to mu 0 current enclosed
राइट। और ये तो आ गया आपका BL म्यू जीरो, करंट एनक्लोज्ड, करंट एनक्लोज्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ मच इज द करंट एनक्लोज्ड इन द लूप? कितना है? NL, वेरी गुड, N इंटू L। या फिर अगर आपके बुक के हिसाब से जाएं तो शायद उन्होंने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n लिखा होगा, हो सकता है स्मॉल n, है ना? स्मॉल n क्या बता देता हूं। देखो अप्रोच आई टोल्ड यू ऑलरेडी, अप्रोच में भी डिफरेंट, कुछ नहीं है क्या यार, इसको ऐसे शिफ्ट किया कर दो, मतलब पूरे के पूरे टर्न्स मत लो, इन शॉर्ट डू नॉट कंसीडर ऑल द टर्न्स, ठीक है, डजंट मैटर एट ऑल, पूरे टर्न्स नहीं लिए होंगे उन्होंने, दैट्स ओके। So they have not taken all the number of turns, right? ऐसा है, so they are not considering total number of turns. So small n, what is small n? Number of turns per unit length. तो ये P पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये S पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये R आ जाएगा यहाँ, and then this S is going to be over. अब देखो यही I current, the same I current goes multiple number of times. अगर मैं मानता हूं if I take small n as number of turns per unit length, मतलब क्या, हमारे पास एक 10 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड है, इमेजिन 10 मीटर बड़ा सोलेनॉइड है, उसके ऊपर 10,000 टर्न्स है, 10,000, 10 पावर 4, राइट? हाउ मेनी टर्न्स पर मीटर? 1000, तो दैट इज स्मॉल n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? तो अब इस लूप में से एक ही करंट मल्टीपल टाइम्स जा रहा है, राइट? तो करंट एंक्लोज मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे? व्हाट विल बी करंट एंक्लोज? NLI, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द लूप, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें? P से Q में, टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अभी भी एग्जांपल दिया मैंने आपको, टोटल टर्न्स 10,000, टोटल लेंथ 10, आपने बोला 1 मीटर में कितने? 1000, फिर 5 मीटर में कितने? मतलब क्या किया आपने, पता है? आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, मतलब 1000 को टोटल लेंथ ऑफ द लूप मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट्स इट, करेक्ट है, सही है, गुड, यस, कैंसल एंड कैंसल। तो क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो है ना, यही तो मिलता है ना एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, दिस इज द फील्ड दैट यू गेट एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर? अप्रोच को क्लियर रखो, सिंपल थिंग, गुड। सो एक लास्ट टॉपिक दैट इज फॉर टोरॉइड, सेम फॉर्मूला आता है, एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ टोरॉइड में क्या है कि इसी सोलेनॉइड को आपने डोनट बना दिया, लाइव एग्जांपल, ये मोबाइल जिस पे लगाया वही है, यू सी, राइट? सो टोरॉइड मतलब सोलेनॉइड इन द शेप ऑफ डोनट। So that's the end of this chapter.